So pelvic muscle includes two group of muscles, right? They are studying about muscles of pelvis. Pelvic muscle includes two groups. One group is levator ani, Levator and the coccygeus. right? One is levator ani and coccygeus, and the other one is piriformis Piriformis and obturator and internus. obturator internus. Okay, these are the two ones that we are going to see. तो मसल ग्रुप्स को हमने पहले बना दिया, अब हम उसको डिटेल में देखेंगे. पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं. लेवेटर एनी एंड कॉक्सिजस मसल्स ऑफ both sides, they form a funnel shape. ठीक है, they form a funnel shape. And how you have studied about respiratory system, there is a diaphragm that is the dome shaped, right? Here it is funnel shaped, that means नीचे की तरफ को है. वहां पर एक डोम की तरह था, एक गुंबद की तरह था, और यहाँ पर जो ये मसल्स हैं ये सब एक साथ में आकर एक तरह से एक फनल बनाते हैं, राइट? सो फनल शेप्ड पेल्विक डायफ्राम, it separates pelvic cavity from the perineum. Okay, it separates the pelvic cavity from perineum. Then musculofacial pelvic diaphragm support abdominopelvic viscera. तो जो भी आपके जो पेल्विक डायफ्राम के एरिया के का मेन काम क्या है, एब्डोमिनोपेल्विक एरिया में जितने भी आपके जो ऑर्गन्स उधर पे आ जाते हैं उन सबको सपोर्ट करना. ठीक है, रेक्टम, यूरेथ्रा एंड वजाइना इन फीमेल्स पेनेट्रेट पेल्विक डायफ्राम टू रीच द एक्सटीरियर. So this was just the introduction part to remember, especially understanding about the pelvic diaphragm. So pelvic diaphragm के बारे में पहली बात क्या समझनी है, पहला ग्रुप ऑफ जो मसल्स है लेवेटर एनी एंड कॉक्सिजियस मसल्स, राइट? दे फॉर्म अ funnel shaped pelvic diaphragm. Okay, देन ये पेल्विक डायफ्राम किस तरह से हेल्प करता है, इट सेपरेट्स द पेल्विक कैविटी फ्रॉम द अदर एरियाज, Perineum. फ्रॉम द पेरेनियल एरिया. पेल्विक कैविटी अलग हो जाता है, पेरेनियल अलग हो जाता है. तो लेयर बाय लेयर सोच के देखो, पहला आपका थोरैसिक कैविटी आता है, उसमें उसके ऑर्गन्स, एब्डोमिनल में उसके ऑर्गन्स, पेल्विक कैविटी में उसके ऑर्गन्स, फिर पेरेनियम. Then musculofacial pelvic diaphragm support abdominopelvic. Abdominopelvic यानी एब्डोमेन और पेल्विक से जो भी ऑर्गन्स हैं उन सबको सपोर्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, देन रेक्टम, यूरेथ्रा एंड वजाइना इन फीमेल्स पेनेट्रेट पेल्विक डायफ्राम, उसको क्रॉस कर कर ही बाहर की तरफ आता है. ठीक है, now going into details about the levator ani muscles. First point to remember about the levator ani, when we were studying female reproductive system also we had mentioned about it, right? So it is the largest and most important muscles in the pelvic floor. Largest and most important muscle in the pelvic floor. Then posterior to them are the coccygeus muscles. Fine, this is one thing. Then thin broad levator ani muscles of the two sides unite to form a hammock like sheet of muscle extending from pubis to coccyx and also from one lateral pelvic to another. Okay,
तो हम डायग्राम्स भी देखेंगे, पहले ये कंसेप्ट को आप समझ लो। लेवेटर एनी मसल्स, लेवेटर एनी मसल्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है कि ये लार्जेस्ट है। सेकंड चीज याद रखना कि ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मसल है पेल्विक फ्लोर का, ठीक है। अब पोस्टीरियर टू देम आर दी, लेवेटर एनी के पोस्टीरियर में क्या है, कॉक्सिजियस Coccygeus muscle. मसल्स, ठीक है। Coccygeus. थिन ब्रॉड लेवेटर एनी मसल्स दोनों तरफ से आकर एक झूला जैसा, स्लिंग जैसा पूरा बना देते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम, कहां से कहां, प्यूबिस Pubis to coccyx. To coccyx. ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम वन लैटरल पेल्विक वॉल टू अनदर, ठीक है, one lateral pelvic wall to another. Let us see whether this diagram will make it little easy. Levator ani muscle is a wide thin sheet that has a linear origin. Okay, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, let us see, thank you. यहाँ पर from the back of the body of the pubis, a tendinous arch formed by a thickening of the pelvic fascia. Students, are you able to see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डायग्राम वाला स्लाइड दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes और नो दोनों नहीं हो सकता, नो है तो कंप्लीट नो आएगा। So finally, what is it? It's seen. Yes, ma'am. Okay. So in this diagram, first what we have to know, whatever landmarks we are aware of, उसके साथ में हम देखते हैं। ये आपको लेवेटर एनी मसल्स के लेबलिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, इलियोकॉक्सिजियस, प्यूबो कॉक्सिजियस एंड प्यूबो रेक्टालिस, ठीक है। ये तीन जो मसल्स मिलकर ये बने हैं। लेवेटर एनी मसल इज अ वाइड थिन शीट that has a linear origin, ठीक है। लीनियर यानी स्ट्रेट जाता है। लीनियर ओरिजिन फ्रॉम बैक ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस, a tendinous arch formed by thickening of the pelvic fascia covering the obturator internus. Let us see, यहाँ पर एक obturator internus है, right? ये आप देख सकते हो, this is the area where the muscles are there. You can see the direction also, muscles are shown this way, right? तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ये केवल एक साइड का है ना स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट ऑफ वन साइड, ठीक है। सेम वे फॉर द अदर साइड ऑल्सो इट इज प्रेजेंट. सो दिस इज द मसल दैट इज प्रेजेंट. In your textbook diagram, now if you compare in your textbook diagram, जहाँ पे pelvic diaphragm करके एक डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें आप देखो दो लेबलिंग्स दिख रही है, प्यूबो कॉक्सिजियस मसल्स की लेबलिंग दिखाई हुई है, राइट, और इलियो कॉक्सिजियस मसल्स, ये दोनों यहाँ पर दिखाया हुआ है, राइट. सो दिस इज one of the most important muscles, but it doesn't stop here. We know we have to describe it in detail. अभी हमने केवल उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कहा है कि ये सबसे बड़ा मसल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है पेल्विक फ्लोर का, ठीक है. दो बात हमने कहा. फिर हमने देखा कि ये कॉक्सिजियस मसल जो है उसके एंटीरियर में है, लेवेटर एनी कॉक्सिजियस मसल्स के
एंटीरियर पार्ट में आता है और कॉक्सीजियस मसल्स लेवेटर आने के पोस्टीरियर में आता है। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो आप, ये रहा लेवेटर आनी और पीछे की तरफ यहाँ पर है कॉक्सीजियस मसल। ठीक है, तो वो एक पॉइंट आपने बताया। फिर आपको बताना है कि ऐसे ये यहाँ से यहाँ, मानो एक तरह से एक स्लिंग बोलते हैं ना, झूला, एक स्लिंग जैसा वो बना रहा है पूरा। और ये कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है पूरा, आप अगर देखोगे, राइट, ये पूरी तरह से कहाँ से कहाँ तक है। अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं कॉक्सिक्स एरिया का ये एरिया आ रहा है, तो यहाँ से लेकर मीन्स प्यूबिक एरिया से लेकर यहाँ तक पूरी तरह से ये कवर करता है। ठीक है, और साथ में ही लैटरल पेल्विक वॉल टू अदर, दोनों तरफ में कनेक्ट करता है। अब डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि वी नो अगर मसल्स को हमें डिस्क्राइब करना है, हमें उसे पहले ग्रुप्स में और डिवाइड करना है। तो लेवेटर एनी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्यूबो रेक्टालिस, प्यूबो कॉक्सीजियस एंड थर्ड क्या है, Heliococcygeus. Heliococcygeus. हीलियोकॉक्सीजियस। ठीक है, now first we will see puborectalis. I think I have to, puborectalis arises from the pubis. ठीक है, it arises from the pubis area, passes posteriorly and it unites with the muscles of the opposite side. एंड एक तरह से जो एनल एपर्चर है या एनोरेक्टल जंक्शन है, वहां पर वो एक यू शेप स्लिंग जैसा बना देता है। मोर देन दिस डायग्राम यू विल सी दैट वेरी क्लियर इन दिस वन। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो प्यूबोरेक्टालिस है, राइट, यस भी नहीं है, नो भी नहीं है, स्लाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देन आई विल आल्सो डू वन थिंग, आई विल से राइट एन असाइनमेंट ऑन समथिंग एंड आई विल से टर आंसर। हाँ, स्लाइड दिख रहा है? Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो प्यूबोरेक्टालिस यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है आप साथ में सुनो। प्यूबोरेक्टालिस की जब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यहाँ से ये दिख रहा है, ये प्यूबोरेक्टालिस, ठीक है, यहाँ Yes, से ये शुरू हो रहा है और प्यूबस से स्टार्ट होकर पोस्टीरियरली जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर what is it, it unites with the muscle fibers of the opposite side। इधर आकर ये मसल्स ऑफ द ऑपोजिट साइड उनसे जुड़ता है टू फॉर्म अ यू शेप। ये दिख रहा है, यहाँ से ऐसे जाकर ये यू फॉर्म कर कर ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये क्या एरिया है, दिस इज द एनोरेक्टल एरिया, राइट। तो दिस इज actually helping in maintaining the anorectal flexure. So puborectalis sweeps around the vagina and gets inserted into the perineal body, and जहाँ पर perineal body के साथ में ये merge हो रहा है in females, it is called pubovaginalism। ठीक है, तो हमने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ा है वहां पे आप जब देखोगे ये प्यूबोवेजाइनलिस मसल भी दिखेगा। मेल्स में सम फाइबर्स ऑफ द प्यूबोरेक्टालिस स्वीप अराउंड द प्रोस्टेट and get inserted into the capsule of the prostate and also perineal body। ठीक है, and they form the levator dash, हाँ, levator prostate। ठीक है,
तो दोबारा बोल रही हूँ, लेवेटर एनी 3 मसल्स से मिलकर बना है। पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन के लिए हम इन तीनों को अलग अलग पहले डिस्क्राइब करेंगे। इलियोकॉक्सिजियस मसल्स, प्यूबोकॉक्सिजियस मसल्स, ठीक है। अब ये आपको याद होगा, मैंने हमेशा कहा है मसल्स सबसे आसान तरीका ये याद रखने का है कि हमेशा ओरिजिन और एंड को जोड़कर उनका नाम बनता है। प्यूबस से कॉक्सिजियस तक अगर वो मसल स्ट्रेच हो रहा है तो वी कॉल इट प्यूबोकॉक्सिजियस। इलियो एरिया से लेकर कॉक्सिजियस तक जा रहा है तो इलियोकॉक्सिजियस। प्यूबो एरिया से रेक्टालिस एरिया तक जा रहा है इसलिए प्यूबो रेक्टालिस। तो इट इज सेल्फ, आपको एक बार नाम याद है, you can easily describe them. So beginning with the description, first we are describing puborectalis muscle. Puborectalis arise from the pubis. पीछे से ऐसे, ये जो आपको थोड़ा पर्पल कलर में दिख रहा है, राइट, ये इस तरीके से मूव हो रहा है एंड इट गोज नियर द एनोरेक्टल जंक्शन। यहाँ पर अब ये इस साइड के मसल्स के साथ में जुड़ रहा है, जुड़कर इट इज फॉर्मिंग अ यू शेप एंड कमिंग फॉरवर्ड लाइक दिस। नाउ इन फीमेल्स आई सेड इट विल एंटर इनटू द perennial body and it will be called pubovaginal, whereas in males it will be called levator prostate. तो वो हो गया एक। अब हम नेक्स्ट जो मसल देख रहे हैं वो है प्यूबोकॉक्सिजियस मसल, ठीक है। प्यूबोकॉक्सिजियस मसल यहाँ पर is the main part of the levator, is the main part of the levator ani, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करके बताया है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है बताओ, ये मसल कहाँ से शुरू होगा? प्यूबिस टू कॉक्सिक्स, है ना। तो मसल्स का डिस्क्रिप्शन हमने देखा हमेशा इस तरीके से है। तो ये प्यूबिस एरिया से स्टार्ट होता है, राइट, then and it goes till where? Till the coccyx area, कॉक्सिक्स, ठीक है। and also the anococcygeal ligament, right, तो उससे भी, उसके साथ भी वो जाकर ये हो रहा है, अटैच हो रहा है, ठीक है। and the anococcygeal ligament, ब्रैकेट में देखो क्या दिया हुआ है, फॉर्म्ड बाय इंटरलेसिंग फाइबर्स ऑफ द प्यूबोकॉक्सिजियस मसल्स ऑफ द 2 साइड्स। सो दैट इज वन थिंग, वहां तक वो जा रहा है। अब फीमेल्स में जो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल है, इट एनसर्कल यूरेथ्रा, वेजाइना एंड द एनस, ठीक है। इन तीनों के जो चारों ओर एनसर्कल करके पेरेनियल बॉडी में मर्ज हो जाता है ये मसल, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, प्यूबोकॉक्सिजियस मसल्स शुरू हुआ कहाँ से? प्यूबिस एरिया से, उसका ओरिजिन प्यूबिस एरिया से है, इंसर्शन कॉक्सिक्स की तरफ है, राइट, एंड ऑल्सो एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट एरिया, जहां पर यहाँ से और यहाँ से मसल्स जुड़ रहे हैं, तो उसका जो लिगामेंट एरिया है वहां पर भी ये अटैच हो रहा है। दैट इज वन थिंग, डायरेक्टली यहाँ कॉक्सिक्स की तरफ और यहाँ पर लिगामेंट की तरफ इट इज अटैचिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इन फीमेल्स व्हाट इज सीन इज दिस मसल्स encircle the urethra, vagina and the anus and finally merge with the perineal body, ठीक है। तो this is what we were seeing about the प्यूबोकॉक्सिजियस, then ये भी हमने देख लिया। फिर इलियोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस व्हाट इज द थिंग टू रिमेंबर? इलियोकॉक्सिजियस आपके टेक्स्ट बुक डायग्राम में भी अच्छे से दिया हुआ है, यू ऑल कैन सी द टेक्स्ट बुक डायग्राम ऑफ
pelvic diaphragm, right? Iliococcyges arise from the tendinous arch of the obturatory fascia and the ischial spine. ठीक है, origin obturatory fascia and ischial spine. We'll keep the first diagram only. I think this is more easy for you all. हाँ. These fibers pass medially and posteriorly and attach to the coccyx and the anococcygeal ligament. ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है यहां से जाते हुए इलियोकॉक्सिजेस मसल्स, ये मसल्स में आपको ये याद रखना है कि खास करके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्टुरेटरी फेशिया से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स? ischial spine तक। हाँ, इशियल स्पाइन तक। ठीक है, तो इशियल स्पाइन तक जाएगा, मीडियली मूव होता है और पोस्टीरियरली, मीडियली एंड पोस्टीरियरली it goes and then it attaches to the coccyx. It attaches to the coccyx and also the anococcygeal ligament. ठीक है, हमने देख लिया. Okay, this diagram also you can see. ये एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्रंट व्यू देख रहे हैं, है ना? ये हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं. तो you can see this is sacrum. Let us see levator ani. दो मसल्स के बारे में हम बोल रहे हैं ना, लेवेटर एनी एंड कॉक्सिजेस. उसमें से लेवेटर एनी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट में. लेवेटर एनी को हमने डिटेल में देखा. तो लेवेटर एनी में प्यूबो रेक्टालिस सबसे पहले देखा. प्यूबो रेक्टालिस व्हाट डिड वी लर्न, कहाँ से कहाँ, प्यूबिस से स्टार्ट होता है और पोस्टीरियरली इट गोज राइट एंड यहाँ से ऐसे घूम के आ जाएगा. इधर रेक्टम है, सो यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ से जाके यू फॉर्म करते हुए, यू शेप फॉर्म करते हुए इस तरफ को आ जाएगा. ठीक है, प्यूबोकॉक्सिजेस देखो, प्यूबोकॉक्सिजेस कहाँ पे दिखाया हुआ है, arise from the pubis and they are inserted where, they are inserted here in the coccyx and also anococcygeal ligament. ठीक है, that is one thing. Third, इलियोकॉक्सिजेस. ये इलियोकॉक्सिजेस हम देखेंगे. arise from tendinous arch, वहाँ से of the obturatory fascia and it is moving. This is the ileococcygeus. Okay. Now next thing we will see, we will go according to your textbook pattern only. First we will see the nerve supply. अब आप लोग बताओ लेवेटर एनी का नर्व सप्लाई कहाँ से है? Perennial branches of S3 and S4. Okay. Perennial branches. S3 and S4 क्या है? Sacrum 3, sacrum 4. Sacrum vertebra. Fine. ठीक है, तो लेवेटर एनी is supplied by perennial branches of S3 and S4. Then coming to the main actions of this levator ani muscles, the specific things we'll see. Some given on the slides and some in your textbooks. We can together see. ठीक है, support of abdominopelvic viscera.
which we already discussed कि इसका मेजर काम है ब्लैडर, इंटेस्टाइन, यूट्रस, इन सब अंदर के विसरा ऑर्गन्स को सपोर्ट करना. फाइन. Second thing is it also has a role in increasing intra-abdominal pressure. That is one thing. Third, sphincter action on the rectum and urethra. So ये pelvic floor muscles play an important role in controlling the evacuation of stool and urine. Right? So when these muscles relax, they are helping in urination and defecation. Okay. Besides this, let us go through the actions that are there in your textbook. Actions, पहले pelvic diaphragm का action very clearly it is given. It supports the pelvic viscera. Pelvic viscera में क्या क्या आ गया students? urethra, vagina. हाँ? पेल्विक विसरा में क्या क्या आ गया? Yes. Don't forget we are doing revision class. Then rectum, urethra. Rectum, urethra, all this that is there in the pelvic cavity. Okay. Acting together, next बताया है levator ani muscle raise the pelvic floor, thereby helping the muscles of the anterior abdominal wall in compressing the abdominal and pelvic contents. This action is important in cuffing, micturition, in lifting heavy objects. Okay. The levator ani muscle raises the pelvic floor. And thus what happens? It helps the muscles of the anterior abdominal wall in compressing the abdominal and pelvic content. So when the fecal matter and all has to be pushed out, right? So even when urine has to be voided out, there is a need of a pressure to be created. So levator ani helps in creating the pressure. Then puborectalis muscle prevents passage of fecal matter from rectum into the anal canal when defecation is not desired. Okay. So this muscle even plays a role in controlling your bowel opening pattern. It is not that as and when the fecal matter is formed, it is evacuated out. These muscles help to कंट्रोल इट. प्यूबोरेक्टालिस जो आपने यू शेप में वो एनल जंक्शन के वहां से गुजरते हुए देखा, वो मसल जो है रेक्टम से एनल कैनाल की तरफ अननेसेसरली स्टूल को पहुंचने नहीं देता है. एंड लास्ट वन इज ड्यूरिंग parturition. What is parturition, students? Childbirth. The action of giving birth to young. Act of delivering the baby or childbirth. During operation, the levator ani, what does it do? It actually supports the fetal head. ठीक है. एक तरफ cervix जो, now you all know what is cervix. What is cervix? यहाँ पे cervix जब मैं बोल रही हूँ कहाँ का पार्ट है? बल्बा, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सर्विक्स कहाँ पे आया? Female reproductive. Yes, answer. Huh? Female reproductive.
हाँ, वेरी गुड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे है? ऐसे सब मिल बांट के आंसर तो करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करके बोला। वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटलिया पार्ट। हाँ, किस पार्ट में है? हाउ विल यू डिस्क्राइब वेयर इट इज? Internal. अभी कोई एक्सटर्नल बोला, वन इज सेइंग इंटरनल। डिसाइड एंड टेल मी व्हाट इट इज एंड वेयर इट इज। Neck of the urethra. हैं? Neck of the urethra हाँ, is the Ma'am, lower it is portion. कहाँ पर है? यूट्रस ना? यू हैव स्टडीड अबाउट यूट्रस। Yes, ma'am. Who taught you? I only taught you. Otherwise, you would have said कि नहीं पढ़ाया. ओके, सो सर वो जो सर्विक्स है, यूट्रस में वो फीटस ग्रो हो रहा है. इट इज अटैच टू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. इट इज गेटिंग ऑल नरिशमेंट. फिर जब डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है बेबी, रास्ता चाहिए ना, सो वो सर्विक्स डायलेट होता है. वी हैव स्टडीड दिस. इट बिकम्स द पैसेज. सर्विक्स डायलेट होकर बेबी का हेड मूव होने के लिए अलाउ करता है. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट सर्विक्स डायलेट हुआ और बेबी जस्ट गेट डिलीवर्ड. when the baby is getting delivered, that time pelvic floor muscles are giving support to the baby's head. ठीक है, एकदम अचानक ऐसे लटकता नहीं है. the head slowly comes out because the support is there. the pelvic floor muscle support is there. Clear with this? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes. ओके, क्लिनिकल कोरिलेशन देखिए क्या है. प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट ऑफ लेवेटर एनी इज लाइकली टू गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, है ना. प्यूबोकॉक्सिजियस पास जो पार्ट है लेवेटर एनी का, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे क्या हो सकता है? इट कैन गेट डैमेज. ये अननेसेसरी डैमेज ना होने के लिए हम क्या करते हैं? हमें जब दिखता है कि बेबी का जो सिर है वो बिल्कुल वहाँ पर ऑब्वियसली दिखने लगा है, तो व्हाट वी डू, वी एक्चुअली गिव अ एपिसियोटमी. ठीक है, यानी स्किन, वेजाइनल वॉल और जो बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल है उसको एक डायगोनल कट देते हैं. एपिसियोटमी यानी वी गिव अ डायगोनल कट देयर. तो क्या होगा? बेबी का जो हेड है वो फिर आराम से इट कैन स्टार्ट कमिंग आउट. ठीक है. Another thing is weakness of the pubovaginous part of the levator ani because of overstretching and some cuts and tears during childbirth. It can lead to urinary stress incontinence. Now you will be thinking, what is urinary stress incontinence? When we feel like micturition, when we feel like passing urine, it is not that then and there we pass it, right? हम वॉशरूम जाते हैं तब उसके बाद में यूरिन पास होता है. बट फॉर समवन हु हैज अ यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, व्हाट कैन हैपन? द पर्सन coughs, person sneezes, या वो कुछ अचानक हेवी वेट उठाता है, किसी भी तरह से स्ट्रेस उठाता है. स्ट्रेस मीन्स उसके एब्डोमिनल एरिया में स्ट्रेस पड़ता है, तो देयर इज लीकेज ऑफ यूरिन. ठीक है, देयर कैन बी लीकेज ऑफ यूरिन. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? whenever a person coughs, whenever a person sneezes, what will happen? There will be dribbling of urine because of increase in intra-abdominal pressure. See, I am not saying कि intra-abdominal pressure नहीं चाहिए. अगर अच्छा intra-abdominal pressure नहीं है तो फिर कभी भी proper evacuation नहीं होगा, proper micturition नहीं होगा.
बट यहाँ हम ये बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दैट when the person coughs, when the person sneezes, there is leakage of urine. ठीक है, so अभी you may think कि ठीक है थोड़ा सा, no, it can be such a nuisance for the person that the person may smell urine, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है जब उस पर्सन के पास जाते हैं, the person may smell urine, तो it is quite embarrassing, right? तो ये एक क्लिनिकल कोरिलेशन, तो टोटल 2 क्लिनिकल कोरिलेशन आपने इसमें सीखा है, राइट? 2 क्लिनिकल कोरिलेशन में एक है कि प्यूबोकॉक्सिजियस मसल्स जो हैं इनमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए जब एक फीमेल डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, जब उसका सर्विक्स डायलेट हो जाता है, बेबी का हेड एंगेज दिखने लगता है, व्हाट वी डू, वी गिव अ एपिसियोटोमी. एपिसियोटोमी क्या है? ये वेजाइना का वॉल और स्किन और बल्बोस्पॉन्जियस मसल जो है वहाँ पे एक कट दिया जाता है. ऐसा नहीं है कुछ कैंची उठाया और काट दिया, ठीक है. द मदर इज इन्फॉर्म्ड, वहाँ पे लोकल हम एनेस्थेटिक्स देते हैं, लिग्नोकेन से लोकल इन्फिल्ट्रेशन करके उसको सुन्न कर देते हैं उस एरिया को, फिर हम वहाँ पर एक कट देते हैं सो दैट द बेबीज हेड कैन नाउ स्टार्ट कमिंग आउट easily rather than she pushing so much and the muscle getting tear, okay, या torn, sorry. वो एक हो गया. दूसरी बात हमने समझा कि अगर प्यूबो वेजाइनालिस मसल्स वीक हो गए तो किसी को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. लेट अस सी piriformis last one for today. Piriformis muscle 2 ग्रुप में बैठा था, हम इंपॉर्टेंट वंस को देख रहे हैं ना. पिरिफॉर्मिस Yes. जो मसल है इसकी पहले डिस्क्रिप्शन में आपको ये बात कहनी है कि ये पेयर शेप्ड है थोड़ा, एंड ऑक्यूपाई अ की पोजीशन इन द ग्लूटियल रीजन. ठीक है, तो हमने देख लिया. फिर पिरिफॉर्मिस अराइज विद इन द पेल्विस फ्रॉम द pelvic surface of middle 3 pieces of sacrum and upper margin of greater sciatic notch. ठीक है, ये लैंडमार्क्स आपको याद रखने हैं. Its tendon is inserted into the origin, तो समझ में आ गया. greater to center of origin इस एरिया में है ना. ये इस तरह से भी देखेंगे तो ये आ रहा है यहाँ से. ओरिजिन तो समझ में आ गया. और ये जाकर एंटर कहाँ पर हो रहा है? पिरिफॉर्मिस यहाँ से शुरू हुआ. वेयर इज इट गोइंग एंड इंसर्टिंग? into the greater trochanter of femur. Trochanter of femur. ओके, है ना. तो ये फीमर बोन है, ये आपका जो पेल्विस है, ये सेक्रल एरिया है. तो ये पेयर शेप्ड जो मसल्स है, मसल के ग्रुप है, ये ग्लूटियल रीजन में. और कहाँ से शुरू हुए हैं? विद इन द पेल्विस फ्रॉम pelvic surface of middle 3 pieces of sacrum. ठीक है, एकदम सेक्रम के वहां से आकर यहाँ पर आकर ग्रेटर ट्रोकैंटर यहाँ पर आकर ये जुड़ता है. ठीक है, अब ये कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स? Rotates the thigh laterally. हाँ, it helps to rotate the thighs laterally. ठीक है, it helps in rotating the thighs laterally. अब there are certain relations of piriformis. What is the meaning of relations of piriformis?
वी आर टॉकिंग अबाउट देयर अंकल आंटी एंड ऑल रिलेशंस। यहाँ पर क्या है मीनिंग? मैम उसके साथ में, उसके आसपास में। हाँ, व्हाट इज देयर अप डाउन साइड में, है ना, टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी व्हाट इज देयर। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इमर्ज फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ piriformis through the greater sciatic foramen, the superior gluteal vessels and nerves. ठीक है, the following structure emerge from the lower border of piriformis, upper border piriformis through the greater sciatic foramen. क्या क्या निकलता है? ये आप जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से जो निकल के आ रहा है सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व, सब यहाँ से निकलकर आ रहा है। देन लोअर बॉर्डर की बात करें, लोअर बॉर्डर के यहाँ पर एक है सायाटिक नर्व विच इज वेरी क्लियरली लेबल्ड हियर, राइट? पहचानते हो इसको? Students, I don't mind this is getting recorded and this will be on YouTube. I am now really surprised some of you are awake or not. Yes, ma'am, sciatic nerve. I know some few students, 4 or 5 of them are trying to interact with me. At least they are representing the whole class. Rest of you all, I am asking a question, never you all feel like unmuting and answering. It is quite surprising. या तो ये हुआ है कि ब्रश भी नहीं किया है और नाश्ता भी नहीं हुआ है, वो स्टेज में हूँ। वेरी वेरी क्लियर क्वेश्चंस आई एम आस्किंग। इसमें तो मुझे कहना चाहिए कि प्लीज सबके सब एक साथ अनम्यूट मत करो, आई विल आस्क रोल नंबर वाइज। मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, कंप्लीट सन्नाटा। फिर मुश्किल से 3-4 स्टूडेंट सोचेंगे मैम को बुरा लगेगा तो हम आंसर कर देते हैं, है ना? फाइन। हाँ, whoever was answering, yes. Yes, ma'am. This is a sciatic nerve. हाँ बच्चे, सायाटिक नर्व का सिग्निफिकेंस कुछ याद आ रहा है? मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि क्लिनिकल एप्लीकेशन इसके बारे में आप समझ रहे हो क्या? सायाटिक नर्व पढ़ाने के टाइम मैंने कुछ बताया था। आई वांट टू हियर दैट। आउट ऑफ 28-38 जितने भी अटेंड करते हो, अगर एक भी उसको याद रखता है तो मेरे उतने पेशेंट्स बच जाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग सायाटिक नर्व। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सायाटिक नर्व? I'll give another hint. Intramuscular injection site. Upper outer quadrant. Who is this? Ma'am, Priya Shishodia. Very good. है ना? We had studied that we are giving injection in the upper outer quadrant which is the ventrogluteal side. क्योंकि अगर पुराना जो मेथड हुआ करता था डोर्सोग्लूटियल साइट में अगर इंजेक्शन देते हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रिक लग सकता है इस नर्व को। सायाटिक नर्व कैन गेट डैमेज्ड, पर्सन कैन गेट पैरालाइज्ड। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस था। जब इस चीज को देखते हो तो ध्यान रखना। ओके, वी वर टॉकिंग दैट द सायाटिक नर्व इज देयर एंड पोस्टीरियर फेमोरल क्युटेनस नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व्स, काफी लिस्ट है। प्यूडेंडल नर्व which you have studied, internal pudendal vessels, nerve to obturator internus, ये सब जो आप यहाँ पर ये नीचे की तरफ देख रहे हो, these all are going to be the list of it. ठीक है, medial to the piriformis is the sacral plexus and internal iliac vessels. The piriformis forms a muscular bed for the sacral plexus. ठीक है, it forms a muscular bed for the sacral plexus. If you are able to see it, can you see this shadow of the nerves? These nerves sacral area से जो जा रहा है यहाँ पे,
Yes, ma'am. है ना? Yes. तो इनके लिए एंड वी नो दैट ये मसल जो है इसके अंदर से जा रहा है ना, इनके लिए एक कुशन का काम जैसे करता है। इन नर्व्स के लिए ये एक तरह से एक मस्कुलर बेड का काम करता है। सो दीज आर द रिलेशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर. So we finish our class here. Muscles of pelvis we have completed. We have completed means आपके टेक्स्ट बुक के उतने ही डिटेल में मैंने इसको लिया है. Otherwise there is lots to go in this. आपके पास है ये, आप लोगों ने जब क्लासेस लिए थे that time we have seen this. You don't have to worry, these slides have all the content that is taken from the textbook only. Only थोड़े pictures net पे से लिए थे. Otherwise don't start panicking कि ये वाला slide हमारे पास नहीं है. Otherwise check in your MST, the slides will be there. ठीक है? क्योंकि हमारे एकदम starting के classes के हैं ये. Then here we finish our muscles of the pelvis revision. Next class we'll be studying muscles of the shoulder girdle and upper limb. ये शायद एग्जाम में भी आया था ना आप लोग के.